students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट के बारे में और हम ईमेल कैसे भेजते हैं ये भी हम जानने वाले हैं. So let's start the chapter Internet and Email. Things to learn about email, email account and address, working with email, email etiquette. Adia Robo, yesterday my friend Adi said that you can send letters and chat with your family and friends using internet. Is it true? Robo, yes Adia, it is true. Adia, but how do we use the internet to talk someone? I don't know about it. Please explain me. Robo, don't worry Adia, I will explain you. For thousands of years, people have been using various means of communicate with each other. Today, email has become one of the most popular sources of communication. Let's learn about email in this chapter. तो आद्या की तरह आप लोग भी कंफ्यूज हो गए कि ईमेल कैसे भेजा जाता है, कैसे हम नेट के थ्रू एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने कजन से या अपने फ्रेंड से आप चैट कर सकते हैं. तो रोबो कह रहा है कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का क्या करूँगा, समाधान करूँगा इस चैप्टर के थ्रू. तो इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं. These are wonderful times indeed. We have come a long way from writing letters to writing emails. As more and more people are operating up to technology, communication methods changing from conventional to modern. Email have transformed to method of communication on a dramatic manner. तो पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, लोग लेटर्स लिखते थे, उसे पोस्ट करते थे, फिर वो लेटर बॉक्स में से जो पोस्टमैन है वो उन लेटर्स को लेके जाता था, उसको भी 2-3 दिन लगते थे आपके लेटर को पहुंचाने में. अब क्या हो गया, ईमेल का ज़माना हो गया. ठीक है, अब आप मिनटों में अपने लेटर्स या अपने ईमेल्स अपने फ्रेंड्स, अपने कज़न या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स को पहुँचाते हो. ईमेल क्या है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. It is a method to send messages from one computer to another computer through the internet. समझ में आ गया आपको? आपका जो मैसेज है, आपका जो मेल है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचता है, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू. It is mostly used in business, education, technical communication and document interaction. It allows communicating with people all over the world without bothering them. It is the information sent electronically between two or more people over a network. तो ज़्यादातर जो आपके बिजनेस होते हैं या एजुकेशंस वगैरह होते हैं या जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को क्या करना होता है, मेल भेजना होता है. तो ये उनके द्वारा यूज़ किया जाता है. Advantages of email. Once you are online, there is no further expense you need to incur to send your mail. इसमें कोई पैसा नहीं लगता. Nothing is charged for sending and receiving emails, even though the message is sent across the world. अब आप जैसे अपने डाकघर जाते हो, पोस्ट ऑफिस जाते हो, तो वहाँ पे आपको टिकट खरीदना होता है, एनवेलप खरीदना होता है, फिर आपको पेपर खरीदना होता है, फिर दोबारा से आपको पैसे देने होते हैं कि आपका जो लेटर है वो क्या हो जाए, पोस्ट हो जाए. लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं है. Send and receive messages and attachments can be stored safely, logically and reliably. इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी फाइल है या फोटोज़ हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो वो आप अटैच करके अपनी मेल के साथ भेज सकते हैं. Sending and receiving messages is simple. Using an address book of email service, contacts can be accessed easily and quickly. अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपकी अगर रिसिपेंट लिस्ट बनी हुई है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनी हुई है, तो आप इजीली कॉन्टैक्ट्स में से किसी भी पर्सन को जिसको भी आपको भेजना है उसको आप इजीली उसमें क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो जिसको आपको मेल भेजना है. Incoming messages have subject line that means you can delete them without opening. ठीक है, अब कुछ मैसेजेस ऐसे आते हैं जो इररेलेवेंट होते हैं, वो हमारे ज़रूरी नहीं होते, हमारे काम के नहीं होते, तो हम बिना ओपन किए उनको डिलीट कर सकते हैं. Email is by far the fastest means of written communication. A message can reach to any part of the world in a fraction of second. इसका ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर दूर पे बैठे हुए अपने फ्रेंड को भेज सकते हो, विद इन अ सिटी भेज सकते हो, या आप किसी दूसरे स्टेट पे भेज सकते हो. आप ओवर द वर्ल्ड कहीं भी अपने मेल को भेज सकते हो किसी भी पर्सन को. Web-based email provides you the facility to access your messages everywhere, anywhere when you are online. ठीक है, तो आप किसी से भी घर बैठे जब आप ऑनलाइन हैं तो आप किसी से भी क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं. Storing data online means to no need for keeping file cabinets, folders and shelves.
You can access information far quicker if you learn how to use an email. अब पहले क्या होता था, आपके पास बड़े बड़े कैबिनेट होते थे। अगर आप किसी फर्म में गए हो या किसी आप बिजनेस ऑफिस में गए हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा उन्होंने अपनी फाइल जो है स्टोर करके रखी होती है, लेकिन ऐसा ईमेल में नहीं होता। आपका सिंपल फोल्डर बने होते हैं आपके कंप्यूटर में, आप फाइल उसमें सेव करके रख सकते हैं। The email message may consist of a few lines or 1,000 of lines. Message is not charged by weight as in postal services. Not only text message but pictures, videos and sounds can also be sent over email. अब पहले क्या होते थे, तार होते थे जिसमें आप 2-3 लाइन में आपको जल्दी से अपना जो संदेश है वो भेजना होता था, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो ईमेल है वो फ्यू लाइन्स का भी हो सकता है या 1000 लाइन्स का भी हो सकता है। मतलब आप जितना बड़ा आप अपना मेल भेज सकते हैं आप भेज सकते हैं, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते। डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल, अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। एंड ईमेल बेनिफिट्स द यूजर इन अ नंबर ऑफ वेज, हाउएवर ईमेल सर्विस हैज सर्टेन ड्रॉबैक्स टू। सम ईमेल्स में अपसेट यू और काउज एंगर एंड डिस्कम्फर्ट। अब क्या होता है, फालतू के मेल्स आते रहते हैं, आपका इनबॉक्स जो है वो भर जाता है, तो उसमें कोई कंट्रोल नहीं है आपका। Emails lack that personal touch that a handwritten card or letter gives when it comes to relationship. अब पहले क्या होता था, आप सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते थे, अलग अलग कलर के पेन से लिखते थे, आप ड्राइंग वगैरह बनाते थे, वो जो पर्सनल टच है वो खत्म हो गया है। A virus can seriously affect your computer. If you want to use an email, you need to know how to deal with these viruses. ईमेल के थ्रू क्या हो जाते हैं, कभी कभी कोई गलत ईमेल हमारे पास आ जाती है, हम उसको ओपन कर लेते हैं, उसके लिंक को ओपन कर लेते हैं तो हमारे कंप्यूटर पे वायरस आ जाता है। तो वायरस का खतरा भी ईमेल के थ्रू बहुत ज़्यादा रहता है। Due to lack of facial expressions and emotions, there may be misunderstanding while interpreting the ईमेल्स। अब कभी कभी क्या होता है, इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस की कमी होती है, इमोशंस की कमी होती है, तो सामने वाला आपके ईमेल को गलत इंटरप्रेट कर सकता है। ईमेल अकाउंट, यू मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट टू यूज अ ईमेल सर्विस। ईमेल अकाउंट इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विच प्रोवाइड ईमेल सर्विस सच एज yahoo.com, gmail.com and many more. The account gives you a unique email address to which others can send messages. Every email account comes with its own email address. There are many websites on the internet which provide us with the facility of free email accounts. The popular sites are www.gmail.com, www.yahoo.co.in and www.rediffmail.com. तो आपके पास ईमेल भेजने से पहले ईमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी होता है। एक ईमेल आईडी आपको जनरेट करनी होती है जिसके थ्रू आप दूसरी ईमेल आईडीज़ पे क्या भेज सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं। तो ये सब साइट्स आपको दी गई है, इस साइट्स पे जाकर के आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। The person who sends the email is called the sender. The person who receives the email is called the recipient. तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, जो भेजने वाला होता है वो सेंडर कहलाता है और जो रिसीव करता है वो रिसिपिएंट कहलाता है। Now email address, for sending and receiving email we need to first create an email account. Once we have created an account we get an online mailbox to send, receive and store contacts. Mailbox is identified by an email address. Each email address is unique and no two people can have the same name. तो आपका जो ईमेल आईडी होता है वो यूनिक होता है, एक ही ईमेल आईडी को 2 पर्सन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। Every email address has 3 components: username, @ symbol and the domain name. For example, consider the following email address: sangani_sharma127@gmail.com. तो इस तरह का आपका क्या होता है, यूज़र नेम होता है, आपकी आईडी होती है। पहले यूज़र नेम होता है, उसको आपको सिंबल लगाना होता है @ और फिर आपका डोमेन नेम। अगर आपने जीमेल पे बनाया तो gmail.com होगा, अगर आपने याहू पे बनाया तो yahoo.com होगा। यूज़र नेम sangini_sharma127 @ this is pronounced as add and separate the user name and the domain name. तो आपका जो डोमेन नेम होता है और आपका जो यूज़र नेम होता है उसको अलग करता है कौन, ये @ का साइन। डोमेन नेम, द डोमेन इन दिस केस इज gmail.com. अदर डोमेन्स नेम्स आर rediffmail.com, yahoomail.com, hotmail.com एक्सेट्रा। तो इनमें से किसी भी साइट पे जाकर आप अपनी आईडी बना सकते हैं।
Email addresses are not case sensitive. It means we can type the email address in capital letters or small. It makes no difference. तो इसमें कोई भी पाबंदी नहीं होती, आप चाहे कैपिटल लेटर में बनाएं चाहे आप स्मॉल लेटर्स में बनाएं. फॉर एग्जाम्पल, sangini_sharma127@gmail.com is the same as sangini_sharma127@gmail.com. Think and share. An email address cannot use commas, spaces or brackets. Instead, hyphen and underscore can be used. तो आपके जो यूज़र नेम होता है, जो ईमेल एड्रेस होता है, उसमें कॉमास स्पेसेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ब्रैकेट्स भी आप नहीं लगा सकते. नाउ क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट. अब हम जान लेते हैं कि हम अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं. देर आर वेरियस वेबसाइट्स दैट गिव्स ईमेल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट. Some of the very popular are Gmail, Yahoo, Rediffmail, Outlook, etc. You can create your email account with any of these service providers. The most common and general purpose and free email service provider is Gmail. You can open account with any of the other service providers also. The basic steps involved in creating an email account are. तो आपको जिस भी साइट पे अपना बनाना है ईमेल आईडी, तो उसको आपको क्या करना होगा, उस साइट को आपको सबसे पहले ओपन करना होगा. फिर साइट में आपको क्रिएट ईमेल अकाउंट आएगा, उसको जाकर के आपको क्लिक करेंगे तो आपसे आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाएगी. तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं. स्टेप 1, कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ओपन द वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज. Step 2, type www.gmail.com in the address bar of the browser. The home page of Gmail appears. Step 3, click on the create account button to create a new email account. A list of options appears. Step 4, click on the for my personal use option. A registration form appears on the screen. Step 5, fill in the registration form with the correct information. Step 6, provide the username and password of the user to generate email account. Step 7, click on the next button. Another form appear on the screen. Step 8, fill up the form according to the information asked. Step 9, click on the next button. Another window appears to verify the entered phone number. Step 10, click on the send button to verify the phone or click on not now to verify the phone number afterwards. A Google verification password that appears on the mobile having that phone number. Step 11, enter the password on the Google page to verify the phone number. Step 12, click on the verify button. The phone number will be verified and another Google screen appears. Step 13, click on the yes I am button to continue to the next screen. The Google terms and condition page appears. Step 14, click on the I agree button. The Google account will be created and a welcome screen appears. Step 15, click on the next button. The Gmail account interface will appear. तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि कैसे आपको अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है. इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज जो आपका वेब ब्राउज़र है उसको आप ओपन कर लेंगे. देन यहाँ पे आप सर्च बार में टाइप करेंगे www.gmail.com. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें gmail.com पे बनाना सिखाया गया है. आप कोई और वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं. यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे. इसमें से आपको यूज़ करना है फॉर माय पर्सनल यूज़, क्योंकि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए अकाउंट बना रहे हैं. देन इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही देनी है. जो आपकी एज है या जो भी आपके बारे में है वो आपको करेक्ट ही बताना है, आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है. फिर आपको यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना है ताकि आप अपना ईमेल अकाउंट जनरेट कर सके या जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं. उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे जाएंगे तो आप दूसरी स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे. यहाँ पे भी आपको फॉर्म फिल करना है जो आपसे और इन्फॉर्मेशन मांगेगा. फिर आप अगेन नेक्स्ट बटन पे जाएंगे. ठीक है, उसके बाद एक और विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी जो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेगी. आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर करना है. फिर आपको थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि आपके फ़ोन नंबर पे वो एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे. वेरिफिकेशन कोड को आपको वहाँ पे टाइप करना है. ठीक है, अगर आप नहीं डालना चाहते, यहाँ पर नंबर नहीं मेंशन करना चाहते तो आप नॉट नाउ पे मेंशन करेंगे या उसको क्लिक करेंगे. ठीक है, बाद में आप अपना नंबर वेरीफाई करा सकते हैं. इसके बाद आप एंटर करेंगे अपना पासवर्ड और उसके बाद आप वेरीफाई बटन करेंगे. फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप ही हो तो आप लिखेंगे येस आई एम बटन पे आप क्लिक करेंगे. ये वेरीफाई करेंगे कि येस ये आप ही हो, आपने किसी और का नंबर नहीं दिया या कोई और आपका नंबर यूज़ नहीं कर रहा. देन आपके सामने गूगल टर्म्स एंड कंडीशन का पेज अपीयर हो जाएगा. यहाँ पे आप आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे और फिर गूगल का जो न्यू विंडो है वो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे.
You should know a strong password consists of at least 8 characters that are a combination of letters in both uppercase and lowercase numbers and simple symbols as allowed. तो आपका जो पासवर्ड है वो सिंपल नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का ये होना चाहिए और इसमें आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स या कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी याद रखना बच्चों, सिंपल पासवर्ड नहीं रखना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा पासवर्ड आपको रखना है जो सिर्फ आपको ही याद रहे, किसी और को नहीं। Conceptual learning: create an email account for yourself using any of the email services such as Yahoo, Outlook or Google. Note that the interface will be different for different email services, but the basic steps such as filling your details, password and so on remains the same. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग आईडीज़ बनानी है, याहू पे, आउटलुक पे या फिर गूगल पे। आप देखोगे इनकी जो मेलिंग सर्विस होती है, जो इनका इंटरफेस होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन हालांकि जो इनका प्रोसेस होता है किसी भी अकाउंट को जनरेट करने का या क्रिएट करने का वो सेम ही होता है। Now signing in into your email account. When you want to operate your email account, you need to sign in, also called login, into your email account by providing the username and the password which you have been assigned while creating the email account on a particular website. A password is a secret combination of characters that gives you access to the computer or the internet. अब आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया है, अब जब भी आप वेब ब्राउज़र लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा साइन इन के बारे में, ठीक है। तो आपको साइन इन करना है, आपको अपना पासवर्ड और अपना यूज़र नेम याद रखना है। Follow the given steps to access your email account. Step 1, double click on the web browser icon. Step 2, type www.gmail.com in the address bar of the browser window and press enter key. Step 3, click on sign in button on the top right hand of the browser window. Step 4, in the email or phone field, enter username of the email address that you have created. Step 5, click on next button. Step 6, in the enter your password field, enter the password you had created for your email account and click on next button. All your emails are visible in the web browser window. ठीक है, सबसे पहले आप वेब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, आप gmail.com पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका ईमेल और फ़ोन नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है, फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। जैसे आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप वेब ब्राउज़र विंडो पे पहुँच जाएंगे। You should know it is very important that you do not disclose your password to anyone. अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए, ना ही किसी से पूछना चाहिए उसका पासवर्ड। क्रिटिकल थिंकिंग: नेम एनी 2 वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड फ्री ईमेल अकाउंट्स। तो अभी हमने ऊपर जाना है, कहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं या कहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उन वेबसाइट्स के नाम आपको लिखने हैं। Using email: using the email account which you created, you can send, receive, read, reply to and forward your emails. To send an email, you need to take the email address of the person to whom you want to send an email. अब आपको ईमेल सेंड करना भी आना चाहिए, ठीक है। ईमेल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेंडिंग एन ईमेल: फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेंड एन ईमेल। Step 1, log into your email account. Step 2, to write an email, click on the compose button on the top left corner of the window. You will get the new message window with following components as given on next page. 2, the email address of a person who shall be receiving the email message should be written in this section. CC stands for carbon copy. It is an exact copy of the message. The email address of a person who is not directly involved but you would like the message to be sent to him, her too should be written in this section. BCC stands for blind carbon copy. You can take the help of BCC if you want to send the same message to several people without showing them that others have also received the same message. Subject: a very short description to your message is written in this section. For example, if you are sending a resume by email, you can write resume is in the subject section. Message area: this area contains the message which is to be sent. This message is used to send the email to the entered recipient. Discard draft: allows the delete the mail that you are writing and close the new message window. You can also attach a file by clicking on the attach a file button at the bottom of the new message window. Step 3, now type the address in the to box if you have the email address saved in your
online address book, then click the address. Step 4, type in the subject of your email account. Step 5, type your message in the message area. Step 6, to send the email, click send. The email that you send are stored in the sent folder. You can find this folder on the left pan of the page. सबसे पहले आप अपना जो ब्राउज़र है जिसमें आपने अपनी आईडी बनाई है उसको आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन आपने कर लिया अपने ईमेल अकाउंट पे, आपको एक कंपोज करके एक मैसेज, एक आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू मैसेज विंडो जो है ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको ये सब चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। 2 का मतलब होता है कि आपको किसको मैसेज भेजना है, जो आपका रिसिपेंट है उसकी आप आईडी यहाँ पे डालेंगे। CC का मतलब होता है कि आप उस मेल की कोई कार्बन कॉपी किसी और को देना चाहते हैं तो वो उसका आईडी आप CC पे लिखेंगे। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें आप चाहते हो कि आपका जो मैसेज है वो बहुत सारे लोगों को चला जाए लेकिन उनको एक दूसरे को पता ना चले कि जो मैसेज है किस किस को गया है। सब्जेक्ट आपको पता है, जैसे आप अपनी एप्लीकेशन में लिखते हैं सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट जो होता है ये आपका डिस्क्रिप्शन होता है कि आप किस बारे में वो लेटर या जो मेल है वो भेज रहे हैं। इसके बाद आता है आपका मैसेज एरिया, जिसमें आपका मैसेज होता है, जिसमें आप मैसेज अपना टाइप करते हो। देन नीचे आता है आपका सेंड। जब आप अपना मैसेज पूरा टाइप कर लेते हो, अटैचमेंट्स वगैरह कर लेते हो, तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करते हो। डिस्कार्ड ड्राफ्ट का मतलब होता है कि कोई मेल आपका सेंड नहीं हुआ है या आपने उसको क्या कर दिया है, उसको आपको एडिटिंग करना है, सपोज नहीं आपको भेजना तो आप उसको ड्राफ्ट में भेज देते हो, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे टाइप, आप एड्रेस टाइप करेंगे टू बॉक्स पे, ठीक है। उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट टाइप करेंगे, देन आप मैसेज एरिया में अपना मैसेज टाइप करेंगे और उसके बाद आप अपने मेल को सेंड कर देंगे, सेंड पे क्लिक करके। फिर आप देखेंगे आपका जो मेल है वो सेंड फोल्डर में चला जाएगा। इसका मतलब आपने जो जो आइटम्स सेंड किए हैं अब तक वो उस सेंड फोल्डर पे आपको दिख जाएंगे। The common folders that you will see in the left pan are inbox, consists of the email message which you receive. Send contains the email messages you have sent to others. Draft consists of the messages that are composed but not yet sent. Trash, deleted items store email messages which have been deleted. Spam or the junk folder has unwanted messages that the filter separates from the original messages, such as advertisements and newsletter. तो ये सब चीज़ें आपको आपके लेफ्ट पैन में देखने को मिल जाती हैं। इनबॉक्स, जिसमें आपके मैसेज जो आए हुए होते हैं आपके लिए वो आपको नज़र आते हैं। सेंट मतलब जो मैसेज आपने भेजे हुए होते हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं। ड्राफ्ट मतलब जो आपने कंपोज तो किए थे, लिखे तो थे, लेकिन अभी तक आपने सेंट नहीं किए तो वो ड्राफ्ट में चले जाते हैं। ट्रेस यानी कि जो मैसेज आपने डिलीट किए हैं। स्पैम यानी कि जो अनवांटेड मैसेज हैं वो आपको इस फोल्डर में देखने को मिल जाते हैं। Think and share the subject line allows the recipient to know what to expect in the email. Always make it clear and relevant. Now reading an email. To read an email, follow these steps. Step 1. In the email account, click the inbox tab in the left pan. The inbox tab shows the total number of emails in the inbox. Step 2. Click the email and a message is displayed. अब आपको क्या करना है, कोई भी ईमेल आपको आया है उसको आपको पढ़ना है, तो आप सिंपली अपने इनबॉक्स में जाएंगे, ठीक है। जो भी मैसेज आप इसको ओपन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, आपका मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। Replying to a message. To reply to an email, follow these steps. Step 1, open inbox. Step 2, select the email you need to reply to. Step 3, click the reply option of the displayed message. By default, the email address of the sender appears in the to section. The subject of the original message as well as the content of the original message as also retained. The subject of the email always starts with the word re, which means that it is a reply to an email. Step 4, type in your reply. Step 5, click the send button. अगर आप किसी भी मैसेज का रिप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनबॉक्स को ओपन करना है, फिर आपको उस पर्टिकुलर मेल को ओपन करना है जिसका आप रिप्लाई करना चाहते हैं। फिर जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको रिप्लाई का बटन जो है वो नजर आएगा, ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसका रिप्लाई इजीली कर पाएंगे। फिर आप देखेंगे जिसने आपको भेजा था उसका जो एड्रेस है वो 2 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आप उसी के इसका मैसेज का क्या कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। जब आप अपना मैसेज टाइप कर लेंगे फिर आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। Forwarding an email. When we send a message received from one email address to email address,
that is called forwarding the email. You can forward a message received by you to many other users by using the forward button. Follow the given steps to forward an email. Step 1, open the email which you want to forward. Step 2, click on the forward button. Step 3, the mail window will open. A. In the to box, enter the email address to which you are forwarding the email. You can also enter multiple addresses separated by comma. B. The subject line will automatically get completed by the subject of the original message with a prefix FW. Step 4, click on the send button. The message will be forwarded to the email addresses mentioned in the to box. अब आपको क्या करना है, आपको एक मेल को किसी और को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। सेम एज इट इज़ मेल आप किसी और को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ताकि वो बंदा भी आपके जो मैसेज है या जो आपको मैसेज है उसको क्या करे, पढ़ सके। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको मेल को ओपन करना है जिसको आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। देन आपको रिप्लाई के साथ ही फॉरवर्ड का बटन नज़र आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने मेल विंडो जो है ओपन हो जाएगी। इसमें टू बॉक्स में आपको एंटर करना है ईमेल एड्रेस जिसको भी आपको मेल फॉरवर्ड करना चाहते हैं। आपका सब्जेक्ट लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपका ओरिजिनल मैसेज आ जाएगा विद प्रीफिक्स फॉरवर्ड। देन आपको क्लिक करना है सेंड बटन पे, तो आपका जो मैसेज है वो आपके ईमेल एड्रेस जो भी आपने दिया था वहाँ पे मेंशन किया था उसको पहुँच जाएगा। Sending files as an attachment. You can send pictures, documents, audios and videos with an email. A file that is sent along with an email is called an attachment. To send an attachment with an email, follow these steps. अब आप अपने मेल के साथ, अपने मैसेज के साथ आप अपनी फाइल्स, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। Step 1, log into your email account. Step 2, click on the compose button to start composing a new email. Step 3, click on attach files icon in the new message window. Step 4, browse and select the file from the open dialog box displayed. Step 5, click on send. Always remember, you cannot send executable files or messages larger than 25 MB as an attachment. Nowadays, the internet provides some emerging technologies that enables us to transfer a file beyond 25 MB. Some of the most popular services are WeTransfer and SendSpace. अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अटैचमेंट करते हो अपनी फाइल के साथ। आपको लॉगिन करना है अपने ईमेल अकाउंट पे, देन आपको कंपोज बटन पे जाना है और आपको अपनी ईमेल कंपोज करनी शुरू करनी है। इसके बाद आपको एक इस तरह का पिन जैसा आइकन नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब होता है आप यहाँ पे अटैच, इस पर क्लिक करके अपनी फाइल अटैच कर सकते हैं। फिर आपके सामने न्यू मैसेज विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओपन डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करके इसमें से फाइल को आपको ब्राउज करना है जिसको भी आप सेंड करना चाहते हैं। आपको याद रखना है कि आप 25 MB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। हालांकि आजकल वी ट्रांसफ़र के बारे में आपने सुना होगा, वी फास्ट, सेंड स्पेस के बारे में आपने सुना होगा, जो 25 MB से ज़्यादा फाइल जो है ट्रांसफ़र करना अलाउ करते हैं। Now log out or sign out. Signing out is the process that instructs the email program to exit our email account. To sign out, we click the sign out button. This option brings you out from your email account. अब आपने अपने ईमेल अकाउंट पे वर्क कर लिया तो आपको साइन आउट भी करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके पीछे से आपका ईमेल अकाउंट कोई और भी एक्सेस कर सकता है। ईमेल एटिकेट्स के बारे में जान लेते हैं। द टर्म ईमेल एटिकेट रेफर्स टू द कोड ऑफ गुड बिहेवियर वन शुड फॉलो वाइल कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल्स। हियर आर सम बेसिक थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड वाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल थ्रू ईमेल्स। Always remember that it is real people you are communicating with over the internet. Do nothing that will ruffle the sensibilities of others or harm the internets of people you are communicating with. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ईमेल पे बात कर रहे होते हैं हमें लोगों की सेंसिबिलिटी के बारे में भी सोचना चाहिए और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इंटरनेट पे किन लोगों से बात कर रहे हैं, मतलब जिनसे आप बात कर रहे हैं वो आपके नोन होने चाहिए। Never use capital letters while typing your email message. The use of capital in email message is considered as impolite and equivalent to shouting in speech. तो email messages में आपको capital letters avoid करने हैं। Do not send large size attachment with your emails. The recipient may not be able to download the attachment if she has a slow internet connection. हमेशा आपको क्या करना है, अपने ईमेल्स में आपको लार्ज साइज अटैचमेंट्स नहीं भेजने हैं क्योंकि आप तो भेज दोगे लेकिन सामने वाला उनको डाउनलोड नहीं कर पाएगा। Never open an attachment if the email has come from an unknown source. If you want to open it, first scan it properly for viruses.
कोई भी ईमेल जो आपको अननोन सोर्स से आई है उसको आपको ओपन नहीं करना है, उसमें वायरस हो सकता है। Never disclose your home address, school address or send your pictures to an unknown person. These can be misused. कभी भी जिस पर्सन को आप नहीं जानते उसको आप होम एड्रेस या फिर अपने स्कूल का एड्रेस या फिर अपनी पिक्चर्स या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। Always read your mail properly before sending it to the recipient. A message with a lot of spelling errors will not make a good impression of you. जब भी आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं या अपना ईमेल भेज रहे हैं तो उसको आप चेक कर लें कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेकल या ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। Write the subject line of your email very carefully. The subject line is the most important part of an email and it often determines whether the recipient will read your mail or not. अब जैसे आप अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें आप सब्जेक्ट मेंशन ज़रूर करते हैं, तो सब्जेक्ट आपको अपने ईमेल में भी मेंशन करना है और केयरफुली मेंशन करना है। Now tricky terms. Email, a service available on the internet that allows instantaneous exchange of messages between internet users. Email account, internet space where your email communication is stored. You need an email address to open and access your email account. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने जाना ईमेल क्या होता है, ईमेल के थ्रू आप दूसरे पर्सन से क्या कर सकते हैं, इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके संपर्क में आ सकते हैं। और हमने जाना कि आप ईमेल कैसे बनाते हैं और ईमेल टर्म्स के बारे में और ईमेल एटिकेट्स के बारे में भी हमने जाना। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.